So student, good morning. Today we'll discuss that meiosis reduces the parental chromosome number, how it takes place. We already discussed the whole mechanism of meiosis and each and every step of meiosis, but today we'll discuss some molecular basis and some mechanism which are involved with meiosis, right? And structure of chromosome, microscopic structure of chromosome. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पहले हमने मियोसिस डिस्कस किया था। मियोसिस की ईच एंड एवरी स्टेजेस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो मियोसिस है उसमें जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर है वो कैसे रिड्यूस होता है, और हम मियोसिस में होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, राइट? So in this diagram you can easily see the meiosis. This diagram is taken from Molecular Biology of Genes by James D. Watson, right? We already have seen all the stages of meiosis, but this is for just for reference because I am discussing some important mechanism during meiosis. So student, ये जो आप फिगर देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो, ये मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन्स जेम्स डी वॉटसन से लिया है। हमने पिछली बार ये मियोसिस का जो ईच एंड एवरी स्टेप्स हैं ये डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया था, अध्ययन कर लिया था। बट ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया जिससे आपको अभी में जो मैकेनिज्म्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस में होने वाली, वो एक बार मैं आपको समझाने वाली हूँ और वो आपको इसमें अच्छे से एवरी स्टेज पे दिखाई देंगी। सो आई स्टार्ट and I'll explain how in meiosis the reduction of parental chromosome numbers takes place. The second type, this is the second type of cell division which takes place in eukaryotic cell. It is specialized to produce cell that have half the number of chromosomes than the parental cell, right? Like the mitosis cell cycle, the meiotic cell cycle also includes G1S and the elongated Z2 phase. We can see it in all stages in this figure, right? During the meiosis S phase, each chromosome is replicated and the daughter chromatid remains associated as in the mitosis of S phase. Cells that enter meiosis must be diploid and contains two copies of each chromosome, one derived from each parent. After DNA replication, these related sister chromatid pairs called homologous pair with one another and recombine. Recombination between homologous creates a physical linkage two between these two homologous that is required to connect two related sister chromatid pair during chromosome segregation. This part we already discussed in last class, that how homologous recombination takes place. But now I am telling what is the importance of this homologous segregation, right? Homologous recombination and chromosomal segregation. सो स्टूडेंट, हमने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में कैसे होता है ये हमने पढ़ लिया था, और क्रोमोसोम सेग्रीगेशन कैसे होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। बट अभी हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इसकी मैकेनिज्म पढ़ी थी। जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये दूसरे प्रकार का सेल डिवीजन है, और ये बहुत ही स्पेशल प्रकार का सेल डिवीजन है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर है इसके अंत में जो क्रोमोसोम है पेरेंट का हाफ रह जाता है। माइटोसिस में जिस प्रकार हम देखते थे कि G1S एंड G2 फेज इन्वॉल्व थी, इसी प्रकार मियोसिस में भी G1S व एक G2 फेज इन्वॉल्व है, लेकिन इसकी जो G2 फेज है उसका समय अधिक है। जो इसकी एस फेज है उसमें हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है और जो डॉटर क्रोमेटिड बने हैं वो एक साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ऐसा ही हम माइटोसिस की एस फेज में देखते थे, राइट?
सो स्टूडेंट, जब भी मियोसिस में सेल एंटर होती है, डिप्लॉइड सेल एंटर होती है, इसमें जो क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज होती हैं और प्रत्येक कॉपी प्रत्येक पेरेंट से आई हुई होती है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं उन्हें हम होमोलोगस बोलते हैं, और ये जो होमोलोगस हैं ये एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करते हैं। ये होमोलोगस जब रिकम्बाइन करते हैं, तो इनमें एक फिजिकल लिंकेज इनके बीच में, दो होमोलोगस के बीच में होता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के ड्यूरिंग सिस्टर क्रोमेटिड के लिए अति आवश्यक है। सो these mechanisms, basic mechanism takes place during meiosis, early stage of meiosis. So students, further we discuss about stages of meiosis and mitosis, little bit comparison. So we have seen the most significant difference between mitosis and meiosis cell cycle occurs during chromosomal segregation. So unlike mitosis, during which there is a single round of chromosome segregation, chromosome participating in meiosis go through two rounds of segregation. We can say it meiosis 1 and meiosis 2. So students, जो mitosis और meiosis में difference है, एक significant difference है, उसे हम इस तरह देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में जो इन दोनों प्रक्रियाओं की क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में अंतर हम देखते हैं। माइटोसिस में मुख्यतः क्या होता है कि सिंगल राउंड होता है, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एक ही बार होता है, और जबकि हम मियोसिस में देखते हैं कि क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के दो राउंड्स होते हैं, जिसको हम मियोसिस 1 व मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं, राइट। लाइक माइटोसिस, ईच ऑफ दीज segregation event includes a prophase, metaphase, anaphase stage. During the metaphase of meiosis 1, also called metaphase 1, the homologous attached to opposite poles of the microtubule based spindle. This attachment is mediated by the kinetochores. Because both the kinetochores of each sister chromatid are attached to the same pole of microtubules spindle, this interaction is referred to as monovalent attachment. In contrast, bivalent attachment is seen in mitosis, in which the kinetochore of sister chromatid pair bind to opposite pole of the spindle, right. So student, हम देख आराम से हम देख सकते हैं, हमने माइटोसिस भी डिटेल में पढ़ा है, मियोसिस भी। माइटोसिस के भी हमने मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट एंड कुछ मैकेनिज्म हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है, बाइवेलेंट एंड मोनोवेलेंट अटैचमेंट। सो हम देख सकते हैं कि जैसे कि माइटोसिस में जब सेग्रीगेशन इवेंट होता है, तो जो जितने भी बेसिक इवेंट है वो कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज स्टेज होती हैं, ठीक है। इसी तरह मियोसिस 1 में भी हम इन इसी स्टेज, जो मेटाफेज स्टेज जो हम माइटोसिस में मेटाफेज बोलते हैं, मियोसिस 1 में हम उसे मेटाफेज 1 बोलते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं आराम से, जो ऑपोजिट पोल्स पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्पिंडल्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स उससे अटैच होते हैं। इस अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट है काइनेटोकोर के द्वारा, ठीक है, काइनेटोकोर के द्वारा मीडिएटेड होता है, काइनेटोकोर का इसमें रोल होता है। तो ये जो बोथ काइनेटोकोर हैं सिस्टर क्रोमेटिड पेयर्स के, ये सेम पोल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करके मोनोवेलेंट अटैचमेंट बनाते हैं, जबकि हमने माइटोसिस में डाइवेलेंट अटैचमेंट देखा था, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स के साथ, ठीक है। अब नाउ फर्दर वी आल्सो discuss some other points, as in mitosis a paired homologous initially resist the tension of spindle pulling them apart. In the case of meiosis 1, this is mediated through the physical connection between the homologous or the crossing over that are induced by recombination. This resistance also required sister chromatid cohesion along the arm of the sister chromatid. When cohesion along the arm is eliminated during anaphase 1, the homologous are released from one another and segregation, and these homologous segregate to opposite pole of cells. So
Importantly, the cohesion between the sisters is maintained nearly the centromere, resulting in the sister chromatid remaining paired. So students, स्टूडेंट हम माइटोसिस में देखते थे कि जो होमोलोगस स्पिंडल की पुलिंग है उसकी वजह से होमोलोगस पेयरिंग जो थी क्रोमोसोम की क्रोमोसोम अलग होके स्पिंडल की तरफ मूवमेंट करते थे। मियोसिस वन में हम देखते हैं कि जो पुलिंग है ये फिजिकल कनेक्शन से मीडिएटेड होती है जो होमोलोगस और क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है इससे इंड्यूस होती है ये जो पुलिंग है। ये जो रेजिस्टेंस है जो सिस्टर क्रोमेटिड जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, इस रेजिस्टेंस के लिए जो सिस्टर क्रोमेटिड कोहेंशन है वो रिक्वायर्ड होता है अलोंग द आर्म। सिस्टर क्रोमेटिड की आर्म्स तक हमें वो रिक्वायर्ड होता है। सिस्टर क्रोमेटिड की आर्म्स पे आप देख सकते हैं इसमें एक तो सेंट्रोमियर की तरफ आपको कोहेंशन दिखाई दे रहा है, एक आर्म्स की तरफ आपको कोहेंशन दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे एनाफेज वन आती है वैसे वैसे जो कोहेंशन है जो अलोंग विद आर्म्स है, आर्म्स की तरफ जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो होमोलोगस है वो रिलीज हो जाते हैं एक दूसरे से और सेग्रीगेट होते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ ऑफ सेल। ठीक है। और इसके बाद जो कोहेंशन है सेंट्रोमियर की तरफ जो कोहेंशन आपको दिखाई दे रहा है वो बना रहता है, और जो आर्म्स की तरफ है वो रिलीज हो जाता है। इससे क्या होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनमें पेयरिंग मेंटेन रहती है। सो फर्दर क्या होता है in the second round of segregation? Now we talk about second round. The second round of segregation during meiosis 2 is very similar to mitosis. The major difference is that the round of DNA replication does not precede this segregation event. Instead, a spindle is formed in association with each of the two newly separated sister chromatid pairs. As in mitosis, during metaphase 2 of meiosis, these spindles attach in a bivalent manner to kinetochore of the each sister chromatid pair. So, cohesion that remains at the chromosome after meiosis 1 is critical to oppose the pull of the spindle. As in mitosis, anaphase 2 is initiated by the elimination of centromere cohesion. At this point, there are four sets of chromosomes in a cell, each of which contains only one copy of each chromosome. A nucleus uh, forms around each set of chromosome, right? And then the cytoplasm is divided to form four haploid cells. These cells are now ready to mate to form new diploid cells. So these are the basic event which takes place during meiosis and meiosis 2 basically. So students, अब हम events के बारे में बात करेंगे जो meiosis 2 में होते हैं, जिसको हम सेकेंड राउंड ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेकेंड बार जब सेग्रीगेशन होता है meiosis 2 का, उसमें जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मेजर जो डिफरेंस है वो डीएनए रेप्लिकेशन जो आगे प्रोसीड नहीं होता सेग्रीगेशन इवेंट के बाद, इस पर्टिकुलर सेग्रीगेशन इवेंट के बाद अब इसमें क्या होता है जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली जो नए दो सिस्टर क्रोमेटिड पेयर बने उनसे वो स्पिंडल का फॉर्मेशन उनसे एसोसिएटेड होता है। ठीक है। अब जैसे माइटोसिस की माइटोसिस में होता था उसी तरह इस मियोसिस की मेटाफेज 2 में ये जो स्पिंडल है इनमें बाइवेलेंट टाइप का जो काइनेटोकोर्स है सिस्टर क्रोमेटिड के साथ पेयरिंग करते हैं, बाइवेलेंट इनमें अटैचमेंट पाया जाता है। एंड ये जो कोहेंशन है अगर ये सेंट्रोमियर की तरफ मियोसिस 1 में जैसे था वैसे रहेगा तो जो पुलिंग है ऑपोजिट स्पिंडल की तरफ क्रोमोसोम की वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जो इसका एनाफेज 2 है इसमें क्या होता है ये जो सेंट्रोमियर की तरफ कोहेंशन आपको वो दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में, ये भी रिलीज हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। और उसके बाद इस पॉइंट पे जो ये क्रोमोसोम है ये फोर ये जो चारों क्रोमोसोम है ये आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, ये अलग हो जाते हैं और प्रत्येक में एक कॉपी होती है। और इसके चारों तरफ फिर हम देखते हैं कि चारों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं।
तब नए न्यूक्लियस का निर्माण होना शुरू होता है इन क्रोमोसोम्स पर। एंड हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है चार चार भाग में, और इसको हम ऐसे ये 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होमोलोगस पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन होता है मेटाफेज वन में से, तो उसमें जो कोहेंशन पाया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड में आर्म्स की तरफ भी और सेंट्रोमियर्स की तरफ भी। जो आर्म्स की तरफ का जो कोहेंशन है वो पहले ब्रेक होता है, उसके बाद होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, बट ये जो कोहेंशन है ये कहाँ पे सेंट्रोमियर की तरफ बरकरार रहता है, लेकिन जब मियोसिस 2 होता है तो ये जो कोहेंशन है ये एनाफेज 2 में जो सेंट्रोमियर की तरफ कोहेंशन था वो भी ब्रेक होने लगता है, ब्रेक हो जाता है पूर्ण रूप से, और उससे क्या होता है जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये अलग हो जाते हैं और ये चारों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद इनके ये जो 4 गैमेट्स बनते हैं इन पे न्यूक्लियस का निर्माण होता है, वह साइटोप्लाज्म इनका चारों में डिवाइड हो जाता है। इस तरह हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है विथ ईच कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे ये प्रक्रिया होती है और इसके मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है बेसिकली। सो आगे अब हम ये एक रिसर्च पेपर से मैंने ये लिया है ये पार्ट। बेसिकली इसमें मैं आपको ये पार्ट मैंने ये समझाने के लिए आपको लिया है कि ये जो क्रोमोसोम है और इसकी जो हम ये देखते हैं मियोसिस और स्पेशली मियोसिस में हम जो देखते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन आता है मियोसिस में, इससे ही प्लांट के जीनोम में क्या आता है, क्या हमने पढ़ा था इसके फंक्शंस में मियोसिस का मेन रोल होता है चेंज लाने का, तो इससे प्लांट जीनोम में चेंज आता है। तो उसको हम एक कुछ साइंटिस्ट ने इसको कंपैरेटिव फाइलोजेनेटिक स्टडी की है, साइटोलॉजिकल स्टडीज भी इस पे हुई है, और इससे पता चला है कि ये इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को जनरेट करता है प्लांट जीनोम में, ये जो चेंजेस है अल्टरेशन जो आता है। ठीक है, सो बेसिकली जो मियोसिस प्रोसेस है ये एक तो क्रोमोसोम जो हमारा हेरिडिटी है उसको आगे बढ़ाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ये जो इवोल्यूशनरी चेंजेस और अडेप्टेशन आते हैं उस मैकेनिज्म में भी हमने इसका रोल देखा है। ठीक है, एंड उसके अलावा हमने देखे हैं कि कुछ स्ट्रेस से इंड्यूस चेंजेस जो आते हैं प्लांट्स में वो भी इससे कुछ कोरिलेटेड साइंटिस्ट ने इस पेपर में बताया है कि देखे गए। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपको दिखाई दे रही है इस डायग्राम में, और कैसे डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमें क्रोमोसोम की दिखाई देती है। सो क्रोमोसोम बेसिकली कैसा दिखता है हमें, इट इज अ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ कंडेंस्ड mitotic chromosome also make them relatively easy to visualize even by simple light microscope। तो बेसिकली हमें माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है कॉम्पैक्ट व कंडेंस दिखाई देता है जिसको हम इजीली लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बट क्रोमोसोमल जो डीएनए है बेसिकली नॉट इन माइटोसिस इज लेस कॉम्पैक्ट, और हम इसे जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी हम इसकी कर सकते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप टू स्टेट ऑफ क्रोमेटिड आर readily observed, one fiber with the diameter of either 30 nanometer or 10 nanometer. This 30 nanometer fiber is a more compact version of chromatid that is frequently folded into large loops reaching out from right from a protein core or scaffold. हम देख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हमें इसकी दो अवस्थाएं मिलती हैं क्रोमेटिड की। दो अवस्थाओं में हमने इसे ऑब्जर्व किया है। एक तो हमें ये डायमीटर 30 नैनोमीटर का या 10 नैनोमीटर का दिखाई देता है। अगर ये हमें 30 नैनोमीटर का दिखाई देता है तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट वर्जन होता है क्रोमेटिड का, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और ये लार्ज लूप इसमें हमें दिखाई देते हैं प्रोटीन कोर्स के, जिसको हम स्काफोल्ड कहते हैं। और वहीं अगर हम 10 नैनोमीटर फाइबर अगर हमें दिखता है तो ये लेस कॉम्पैक्ट होता है, ये लेस कॉम्पैक्ट फॉर्म है क्रोमेटिड की। ये बेसिकली ये जो फॉर्म है दिस ये सीरीज से रिजेंबल करती है, जैसे हमें बीड और स्ट्रिंग दिखाई देती है उस टाइप में हमें 10 नैनोमीटर की जब स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम दिखाई देता है तो ऐसा दिखाई देता है कि स्ट्रिंग
एक रस्सी या एक माला के ऊपर मोती लगे हुए हैं, बीड और स्ट्रिंग फॉर्म में हमें दिखाई देता है। ये जो बीड्स होते हैं इसमें, इसे हम न्यूक्लियोसोम्स कह सकते हैं। न्यूक्लियोसोम्स बीड्स के रूप में इसमें दिखाई देते हैं। अब हम आगे फर्दर न्यूक्लियोसोम्स के नेचर और न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम जो है वो असेंबली कैसी होती है। न्यूक्लियोसोम असेंबली के साथ, हिस्टोन्स के साथ, क्रोमोसोम डीएनए का कैसे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, क्या क्या होता है न्यूक्लियोसोम में, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। So student, we also observed chromosome by electronic microscope. We have seen two stages of chromatid are during that electronic microscope study. First, the fiber with the diameter of either 30 nanometer, or secondly 10 nanometer. First, the diameter of 30 nanometer fiber is a more compact version of chromatid that is frequently folded into large loops reaching out from a protein cores or scaffold. In contrast, if we talk about 10 nanometer fiber is a less compact form of chromatin that resembles a regular series of beads on string. These beads are nucleosome. Further, we'll discuss about nucleosome and the structure of nucleosome and how nucleosome assemble. So this is it for today. Now we'll discuss more in next class.